سیاسی قائدین، وکلاء برادری کے نمائندگان اور ہماری صحافی برادری کے جو اور سول سوسائٹی کے جو قائدین یہاں پر موجود ہیں، میں مشکور بھی ہوں اس اے پی سی کے منتظمین کا کہ ضرورت تھی ایک ایسے مکالمے کی جو مسائل جن کا اس وقت ہم سامنا کر رہے ہیں اس پر بحث بھی ہو اور اس سے نکلنے کے لیے کچھ تجاویز بھی سامنے آئے۔ بطور ایک سیاسی ورکر ان حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں اور جتنا پاکستان کی سیاست کی تاریخ کا پھر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پچھلے 75-77 سال سے یہ ملک ایک ہی دائرے میں ہمیں گھومتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کی چند مثالیں مجھ سے پہلے یہاں پر پیش کی گئی۔ لیکن ایک چیز جو مستقل ہے کہ جب سے یہ ملک بنا ہے، اس ملک میں رہنے والے جو محکوم قومیت ہیں ان کا استحصال پہلے ہی دن سے جاری ہے، اور آج اس وقت پشتون اور بلوچ جنوسائیڈ اس ملک میں اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ وزیرستان سے لے کر باجوڑ، تیرا میں جس طریقے سے آپریشنز کے نام پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہے، جس طریقے سے لوگوں کو مار و عدالت قتل کیا جا رہا ہے، شاید یہ اتنا بروٹلی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں پچھلے ایک ہفتے کی ہی آپ کو ایک جھلک دکھاؤں۔ تیرا میں ایک واقعہ ہوا، اس سے پہلے وزیرستان میں چند واقعات ہوئے، پرسوں باجوڑ میں ایک واقعہ ہوا۔ نام اس کا دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہوتا ہے، لیکن اس میں مارا جاتا عام عوام کو ہی ہے، اور ہم پہلے دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ طالبانائزیشن ایک کنٹرولڈ پروجیکٹ ہے۔ یہ پہلے بھی کنٹرول تھا، اور پھر اس کے بعد دوحہ ڈیل جس طریقے سے امریکہ نے کیا اور جس طریقے سے افغانستان کو انہوں نے طالبان کے حوالے کیا، اور پھر اسی کے تسلسل میں ہمارے پورے ریجن میں بھی ان کو پھر بسایا گیا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور ہم ان چند آوازوں میں سے ہیں جو پہلے دن سے اس پورے پروسیس اور پورے عمل کی مخالفت کرتے آ رہے تھے، کیونکہ جب مذاکرات کے نام پر ان کو بسایا جا رہا تھا اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو وہ اعتماد میں لے۔ چند افراد نے ہی صرف اس کی مخالفت کی، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو ایک بین الاقوامی اسٹریٹجک منصوبوں کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہمارے ریجن کو ایک دفعہ پھر اس جنگ کا وہ ایندھن بنا رہے ہیں۔ امریکہ کے اس ریجن میں کیا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، کیا وہ کرنا چاہتا ہے، کس طریقے سے وہ چین کا راستہ روکنا چاہتا ہے، یا ان کو یہاں سے ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ کوشش کرنا چاہتا ہے، یہ اس پورے ریجن کو وہ بطور ایک مورچہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ لیکن پاکستان ایز اے اسٹیٹ ایک دفعہ پھر ایک ٹھیکیدار کا کردار ادا کرتا ہے، اور ان کی اس ٹھیکیداری میں ہم لوگ مارے جا رہے ہیں، ہمارا قتل عام ہو رہا ہے، لوگ زخمی ہو رہے ہیں۔ اور جو گریونسز ہیں عام عوام کی، بلوچ جنوسائیڈ کی میں بات ضرور کروں، جس طریقے سے ان کا قتل عام ہو رہا ہے، یہاں پر ہماری بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لوگ 17-18 دن سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک ٹینٹ لگانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو انسانی حقوق کے حوالے سے جو یہاں پر صورتحال ہے وہ پہلے بھی مثبت نہیں تھی، لیکن جتنا ہم آگے اپنا یہ ملک اپنا سفر جاری رکھتا ہے اتنا ہی وہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی اسٹیٹ پریکٹیکلی کولیپس کر چکی ہے، اسٹیٹ کے تمام ادارے
कोलैप्स कर चुके हैं और जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव का रूप इख्तियार कर चुके हैं। यहाँ पर इससे पहले भी उस पर काफी बहस हुई। स्टेट इस वक्त एक माफिया के तर्ज पर ऑपरेट कर रहा है। फौज है, उनके पास ताकत है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक, उनके पास टैंक है, उनके पास तोपें हैं, वो उसी हिसाब से जो उनके दिल में आता है वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो फिर उसको उनका कानून भी होता है, वो फिर उनका आईन भी होता है। प्रैक्टिकल स्टेट जिसको कहते हैं, जिस तरीके से एक रियासत फंक्शन करती है, वो कोलैप्स उसका हो चुका है। और बड़ा खुसूसन कई इलाकों में तो हम अनकरीब वॉरलैंडिज्म की तरफ जा रहे हैं कि जहां पर फिर जिसका जो बस चलेगा वो अपनी मनमानी करेगा। सियासी वर्कर्स इस वक्त ज़ेर ताब है। पीटीआई के कायद और उनके जमात के और भी काफी मेंबरान, वो इस वक्त उनकी लीडरशिप वो ज़ेर ताब है। अली वजीर जो पिछले रेजिम में भी उनकी ये सूरत हाल थी, कुछ जेलें हमने मिलकर काटी, कुछ उन्होंने अलग काटी, आज भी वही सिचुएशन है। महारंग बलोच और उनके साथ बलोच एग्जीक्यूटिव कमेटी की और उनकी जो लीडरशिप है और उनके कारकुनान है, वो भी ज़ेर ताब है। तो पिछले दिनों कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ जो हुआ, अब ये हम पहली दफा देख रहे हैं कि हॉस्टल में तलबा की मौजूदगी पर भी हमारी रियासत को एतराज है। और फिर आखिर में मैं ये जो फॉर्म 45 का इस दफा जो फ्रॉड इलेक्शन हुआ, उन चंद सियासी वर्कर्स में से वो जिन्होंने इलेक्शन से 2 दिन पहले इस फ्रॉड की आइडेंटिफिकेशन कर दी थी कि इस दफा इस इलेक्शन का फ्रॉड इस तरीके से होगा। इस फ्रॉड इलेक्शन के बाद 2 मसाइल, एक तो पहले से मौजूद थे, लेकिन ये इस फ्रॉड इलेक्शन के बाद जो सबसे बड़ा मसला बतौर एक सियासी वर्कर जिसका हम सामना कर रहे हैं, वो ये है कि हमारे अवाम का एक पीसफुल पॉलिटिकल स्ट्रगल, चाहे वो जिस अंदाज से भी हो, वो एक सियासी पार्टी के अंदाज में हो या एक सियासी तहरीक के अंदाज में हो, एक पीसफुल पॉलिटिकल स्ट्रगल से हमारे अवाम का एतमाद उठ गया है। क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब आपने कंप्यूटर पर बैठकर उम्मीदवारों के वोट लिखने हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक उनको वोट आपने डालने हैं, तो फिर इस पूरे सियासी अमल का ही फिर फायदा क्या है। अब ये जो इस वक्त बतौर एक सियासी वर्कर हम फेस कर रहे हैं, ये मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत को यह मसला दरपेश होगा। तो पहले तो सबसे बड़ा मसला यह है। दूसरा जो बड़ा मसला है वो ये है कि ये जो पेरिफेरीज के लोग हैं, पश्तून और बलोच का जो केस है, उनका पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन पर से एतमाद उठ गया है, क्योंकि चीजें बदलती नहीं है। हमने देखा 2018 में यहां पर पीटीएम का दरबार इस्लामाबाद में बैठा, उसमें शिरकत के तमाम पाकिस्तान की सियासी क़यादत आई, हत्ता कि पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब भी आए। लेकिन फिर जब हालात बदले, हुकूमतें आई, तो फिर जो कुछ हुआ हमारे साथ, मैं उसको यहां पर रिपीट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि तहरीक इंसाफ बतौर जमात खुद इस वक्त ज़ेर आताब है। बलोच मिसिंग पर्सन्स का जब इशू था, पीडीएम का जलसा था कोयटा में, मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और आप पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने स्टेज पे बुला के जलसे में उन लोगों को गले लगाया और उनके सर पर हाथ रखा कि हाँ, आपका मसला जनरल मसला है, ये आप लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन फिर जब हालात बदलते हैं, फिर वही चीज रिपीट होती है, ये सारे मसले फिर वो सब लोग भूल जाते हैं, बल्कि इस तमाम जबर को फिर फैसिलिटेट किया जाता है अपने एग्जीक्यूटिव के जरिए। आज भी अगर हम ये बात कहें, हमारे पख्तूनख्वा में जो हालात हैं,
एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर वहां पर इंप्लीमेंटेड है, वो जिसने भी इंप्लीमेंट किया था। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ की वहां पर हुकूमत है, वो चाहे तो ये जितने भी जो स्ट्रेटेजिक गेम ये हमारे जर्नल वहां पर खेल रहे हैं उनको खत्म कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कंधा दिया हुआ है अपना। अब ये जो हमारे प्रेफरेंस के लोग हैं, ये फिर किस तरीके से क्यों कर फिर ये एतमाद करें कि कल आज जो खैबर पख्तूनख्वा में जो मजबूरियां हैं, कल को वफाकी या पाकिस्तान के लेवल पर अगर कोई तब्दीली हुई तो कल भी यही मजबूरी फिर नहीं होगी। तो ये एतमाद बहाल करने के लिए मेरे ख्याल में कुछ एलानियों से आगे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने होंगे। वहां पर अगर चीफ मिनिस्टर अपनी तंजीम के ताबे नहीं है तो मेरे ख्याल में बतौर तंजीम फिर तहरीक इंसाफ उसको डिसओन करे। अदरवाइज ये जो बदएतमादी की मैंने बात की, ये अपनी जगह कायम है, और वहां पर जो दहशतगर्दी की लहर भी उठी है आज से नहीं उठी, कि ये आज जिस नहज पर बात पहुंची है ये ओवर इनाइट हुआ है। 2018 से मेरी असेंबली के तकरीर आप उठा के देख ले, पहले दिन से मैं इनकी निशानदेही करा रहा था कि ये वहां पर रिग्रुप हो रहे हैं, दोबारा सर उठा रहे हैं। तो हुकूमतें काफी बदली, सियासी जमातें काफी बदली इस दौरान, लेकिन हमारे हालात इसमें चेंज नहीं हुए। एक यहां पर इस एपीसी की शुरुआत में भी एक वो बात महमूद खान चकजई साहब ने भी रखी, मैं भी इसकी तायद करता हूं कि एक नए मुआहदे की जरूरत है और उसमें तमाम सियासी जमातों के पास जाना चाहिए। ये जो आज की एपीसी है, इसकी जो शुरका है, इनकी तरफ से उनको दावतनामा जाना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। एक नए इमरानी मुआहदे की जरूरत है। और ये जो छोटे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, मेरे ख्याल में क्योंकि 18वीं तरमीम को पास हुए अब तक काफी अरसा गुजर चुका है, लेकिन फेडरेशन उस पर अमल नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में ये जो मसाइल मैंने बयान किए उसका हल इस फेडरेशन में, इस मौजूदा फेडरेशन में तभी मुमकिन है जब एक ऐसा फेडरेटिंग स्ट्रक्चर सामने आए जिसमें तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स की बराबर की नुमाइंदगी हो। अगर नहीं होगी तो मेरे ख्याल में फिर यह मुल्क इसी तरीके से चलता रहेगा, बजोर ताकत इन तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को तो वो अपने पास पता नहीं कब तक रख पाएंगे, लेकिन एक हकीकी फेडरेशन के तौर पर यह मुल्क आगे नहीं जा सकता। क्योंकि बलूचिस्तान को जब 14 सीटें आपने दी हैं तो उन 14 सीटों के लिए पाकिस्तान की कोई भी सियासी क़यादत पाकिस्तान के जरनैली के साथ कोई भी कन्फ्रंटेशन मोल लेने को कभी भी तैयार नहीं होगी। तो उसमें एक बुनियादी ढांचे में तब्दीली लानी होगी। मैं एक दफा फिर इस प्रोग्राम के मुंतजिमीन का मशकूर हूं कि उन्होंने हमें दावत दी, और मेरे ख्याल में डिबेट जारी रहनी चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रगल भी जारी रहनी चाहिए, और यही एक आखिरी वे आउट है। मैं एक दफा फिर बहुत